Hello, I welcome you all to this session. Here we are going to discuss the answers to the questions that you have done from the diagnostic test. And you can check all the answers. I'll be discussing the passage, a few techniques to get to the right answer. And yeah, from here we can take it forward. So let's first of all try to understand some techniques of reading. And after that, I'll take you through the questions very quickly. There are a number of techniques. There are some number of best practices people suggest, and different people have different styles of reading, and different participants who who want to take IELTS and clear the test have come from different backgrounds. So there is no one size fits all solution that is good for all the people. So what I suggest is during the course of your journey of taking IELTS, you will discover your own best strategies and your own best styles. So you can focus on all the people like me who give you suggestions and who tell you that this is one good way, this is another good way. But out of all these suggestions, take what works for you the best. And for this, you'll have to do a little bit of testing. तो आप सब पे भरोसा कीजिए, सब पे विश्वास कीजिए कि हाँ भाई ये तरीका इनके हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है, उनको सुनिए, लेकिन उनमें आप अडॉप्ट वही कीजिए जो आपके काम आ रहा है. So there are some good techniques that I'm going to discuss. You please find out whether this works for you or not. So as far as I'm concerned, when I read a passage, I try to relate it with what I already know. I do not go directly to the passage. I read the heading first, making time for time, making time for science. So I'll try to understand why ये making time for science का क्या मतलब है, and why have they made this picture here, making time for science. So this person is standing here in front of the clock and he's thinking. So कुछ ना कुछ time से related है ये, और science से भी related है. And I'll read the first paragraph very carefully. Chronobiology might sound a little futuristic, like something from science fiction novel, perhaps, but it's actually a field of study that concerns one of the oldest processes life on this planet has ever known, short-term rhythms of time and their effects on flora and fauna. अब देखिए इस पैराग्राफ के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनके बारे में मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो ये देखिए डबल डैश का क्या मतलब है. ये दो डैश के बीच में कोई बात लिखी हुई है. इसके अलावा ये जितने भी पंक्चुएशन है मैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाह रहा हूँ. ये कोलन लगाया हुआ है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज punctuations. So punctuations convey something very very special. We are going to discuss that right now. डबल डैश का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स जो कि शायद बहुत आवश्यक ना हो, राइट. सो chronobiology might sound a little futuristic. देखिए अगेन लुक एट दिस वर्ड माइट साउंड मतलब ऐसी लगती है कि कोई चीज बड़ी फ्यूचरिस्टिक है. तो आवश्यक नहीं है कि जो जैसा साउंड कर रहा है वो वैसा ही हो. तो क्रोनोबायोलॉजी माइट साउंड अ लिटिल फ्यूचरिस्टिक. ऐसा लगता है हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बट लगता है रियलिटी कुछ और हो सकती है. लाइक समथिंग फ्रॉम अ साइंस फिक्शन नॉवेल परहैप्स. और ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट these are called as discourse markers या साइन पोस्ट वर्ड्स. साइन पोस्ट वर्ड्स हमें बताते हैं कि हमें किसी टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है. सो बाय बट मीन्स यू टर्न, मतलब अभी तक तो ये सपोजिशन की बात कर रहा था. Chronobiology might sound something which is da da da, which looks like a fiction novel, but अब ये सच्चाई बताने पे आ रहा है. It's actually a field of study that concerns one of the oldest processes life on this planet has ever known. ये कोई फील्ड ऑफ स्टडी है जो बड़ी पुरानी है. ऐसा नहीं है कि कुछ फ्यूचर में आने वाला है. ये तो वो चीज़ है जो काफ़ी समय से चली आ रही है. और फिर लगाया कोलन. ना कोलन का मतलब क्या होता है. कोलन के बाद जो चीज़ आती है वो एक एक्सप्लेन करने के लिए होती है, किसी चीज़ का डिटेल देने के लिए, समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए. तो यहाँ पे जो बात बोली गई है, दिस इज द डिटेल, शॉर्ट टर्म रिदम्स ऑफ टाइम एंड देयर इफेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फौना. कोलन के बाद जो चीज आई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. यानी अगर इस पैराग्राफ के अंदर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो जो कोलन के बाद बात आई है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो बैकग्राउंड बताने के लिए है
कि क्रोनोबायोलॉजी ऐसा लगता है लेकिन वो सच्चाई में ये है, तो ये सच्चाई में क्या है, सच्चाई में ये है. So these are some very important things that you have to take care of while reading. If there is something which is in double dash, it is of less importance. If something is after a colon, it is super important. तो अगर आपको ये पता लगाना है कि भैया सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो आपको ये साइन पोस्ट इशारों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा. साइन पोस्ट आर द small symbols, which we call as punctuation marks, that convey something extremely important to you. तो अगर आपने उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, तो आप सीधे वहां पर पहुंचेंगे जहां पर सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली गई है. तो इन चीजों को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है. और ये जो थोड़े डिस्कोर्स मार्कर्स हैं जैसे बट या हाउएवर, this is again something very important. So these are some simple techniques which you should know, and yeah, knowing them can definitely help you to speed up and get the right answer quickly. चलिए जरा अपन क्वेश्चंस पे आते हैं. एक और इम्पोर्टेंट जो टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, यू शुड लुक एट द पैसेज फ्रॉम द लेंस ऑफ द क्वेश्चंस. देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जनरल हमारे जो कॉलेज की या स्कूल की रीडिंग होती है वो बहुत अलग होती है. When you read in school or college, the purpose is to get knowledge. Here, the purpose is not to get knowledge. Here, the purpose is to get yourself acquainted, to answer a few questions quickly. भाई हमें याद करके 6 महीने बाद थोड़ी ना परीक्षा देनी है, हमें तो तुरंत एग्जाम देना है. तो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप अगर उसको समझ के जल्दी से आंसर कर पाएं, so that is enough. So you should be more focused at the questions and try to understand the questions and go to that particular section in the passage where that particular question is answered, rather than reading the passage very carefully, trying to understand it and then going back to the question. भैया पैसेज पढ़ के कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है. क्वेश्चन की दृष्टि से, क्वेश्चंस की लेंथ से पैसेज को देखिए, जिससे कि आप उसी पर्टिकुलर सेक्शन को देख पाएं जिसमें कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड बात की गई है. तो ज़रा देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंगली हम इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं. पहला क्वेश्चन बोलता है, क्रोनोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम. जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. स्टडी ऑफ हाउ, हाउ मतलब कैसे. अकॉर्डिंग टू दिस हमें बताना क्या है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है या ये नॉट गिवन है, ये सच है, झूठ है या नॉट गिवन है. Chronobiology is the study of how living things have evolved over time. Over time means over long time. Long time. 100 साल, 150 साल. क्योंकि evolve word आया है. Evolve is something which is a very slow process. Evolution of monkey to human being. बंदर से आदमी कैसे बन गया, पता नहीं कितने हजार साल लग गए. So chronobiology is the study of how living things have evolved. So is it like evolution? Is chronobiology similar to evolution? तो अगर evolution ही है वो, तो भैया chronobiology क्यों बोलते हैं. तो हम इसमें अपना ना दिमाग लगाते हुए जरा पैसेज पे चलते हैं. ये पहला क्वेश्चन है तो इसका आंसर पहले पैराग्राफ में होना चाहिए. और हमने देखा कि पहले पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, शॉर्ट टर्म रिदम्स ऑफ टाइम एंड देयर इफेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फौना. तो भैया ये इवोल्यूशन नहीं है, ये तो शॉर्ट टर्म रिदम्स ऑफ टाइम है. शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, 5 मिनट 10 मिनट. एंड देयर इफेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा इज प्लांट्स, फ्लोरा फौना इज एनिमल्स. सो शॉर्ट टर्म रिदम्स ऑफ टाइम एंड देयर इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो भैया अगर तुम इवोल्यूशन बोल रहे हो ये तो बिल्कुल ही फॉल्स हो गया. It is not evolution, it is something which is a slow process. The answer to this is false. Next question. Rise and fall of sea level. Rise and fall of sea levels affects how sea creatures behave. Sea creatures मतलब मछली वगैरह. और rise and fall of sea level मतलब समुद्र का ऊपर उठना या गिरना. So all those waves. और यू माइट हैव, इफ अगर आप कहीं बॉम्बे वॉम्बे गए जहाँ पे जूहू बीच है या फिर मरीना बीच गए, तो आप देख रहे होंगे कि शाम के टाइम पे समुद्र की लहरें किनारे तक आ जाती हैं, सुबह भी आ जाती हैं और फिर दोपहर में वो थोड़ा पीछे रिसीड कर जाती हैं. सो बेसिकली द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स मीन्स दिस.
that at different points in time, the waves of the sea are, there is high tide or low tide, as they say. So this affects the life of creatures. जो वहाँ पे creatures हैं वो उनकी life को affect करता है. तो देखा जाए तो करता ही होगा, but we have to look for evidence every time we go for a question. So let's see whether there is something said of that sort or not. अभी दूसरा क्वेश्चन है तो इसका आंसर दूसरे पैराग्राफ में होना चाहिए. ये बोलता है जी दिस कैन टेक मेनी फॉर्म्स, मेरीन लाइफ या मेराइन लाइफ जो भी बोले, फॉर एग्जाम्पल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइडल पैटर्न्स. सो व्हेन यू से टाइडल पैटर्न्स मतलब राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, और इसने बोला है इन्फ्लुएंस्ड, तो भैया ये तो पक्की बात है, दिस हैज टू बी ट्रू. So the answer to the second question is true. So I'll mark it as true. Let's go to the third one. Most animals. अब देखिए जब भी कोई इस तरह के वर्ड्स हो जो नंबर या प्रोपोर्शन को बताते हो, उनको मार्क कीजिए, क्योंकि उनसे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही होती है. मोस्ट मतलब अगर ये मेरा टाइम लाइन है या फिर कुछ भी बोले, इसमें 1 से लेकर 100 तक का काउंट है, ये 0 से लेकर 100 तक का काउंट है, तो मोस्ट का मतलब हो गया भैया 50 या उससे ऊपर, इजंट इट. तो ये हो गया मोस्ट. सो बोल रहा है मोस्ट एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम, मतलब अगर 100 एनिमल्स हैं तो 50 से ऊपर जो है वो एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम है. सो दे आर एक्टिव इन द डे टाइम. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मोस्ट एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम. अब ध्यान से देखिए आप, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और अपनी पूरी एनर्जी क्वेश्चन को समझने में लगा रहा हूँ, और मैं उससे कॉरस्पॉन्डिंग चीज पैसेज में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. This is something which is very very important, and of course you will have to practice a lot so that you get exposed to all the different types of passages and you understand them fast. But then the crux of the matter is you should focus more on questions and understanding them very properly so that you search the right information and mark the right answer. वरना आप कहीं पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा आसपास का इंफॉर्मेशन भी ऐसा लग सकता है कि हाँ भैया यही जवाब होगा. So most animals are active during the daytime. The meaning of it is that higher proportion of animals, more than 50%, are active during the daytime. ये देख के तो सही लग रहा है, लेकिन you will have to go back and look for evidence there. जरा देखते हैं एविडेंस क्या बोल रहा है भैया. तो एविडेंस बोलता है यहाँ पे numerous creatures, numerous creatures, humans included, are largely diurnal. यहाँ पे बोल रखा है most, वहां पे बोल रखा है न्यूमरस. न्यूमरस का मतलब क्या हुआ, आप इस पर वापस से जाके पढ़ सकते हैं, मैं फटाफट इसको आपको बता दे रहा हूँ. यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द लाइन एंड रीड इट. न्यूमरस क्रीचर्स मतलब बहुत सारे क्रीचर्स, आदमी को इंक्लूड करते हुए, और लार्जली डायरनल. डायरनल का मतलब समझाया गया है डैश लगाकर. दैट इज दे लाइकली दैट इज दे लाइक टू कम आउट ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ सनलाइट. अब देखिए इस लाइन में इसका जवाब है, वो बोलता है न्यूमरस क्रीचर्स. न्यूमरस मीन्स मैनी, और वहां पे बोल रखा था मोस्ट. तो मैनी और मोस्ट एक सा है क्या, जरा इसका एनालिसिस करते हैं, फिर से अपनी टाइमलाइन बनाते हैं. मोस्ट का मतलब होता है भैया 51 से 100 तक, 100 में से, ठीक है. और मैनी का मतलब ये तो हो गया मेरा मोस्ट. और मैनी का मतलब क्या होता है, मैनी भी यहाँ पे आ सकता है. अगर कोई चीज 51 है तो मैं भी उसको मैनी भी बोल सकता हूँ. अगर 52 एनिमल्स हैं जो सुबह एक्टिव होते हैं, तो आई कैन ऑलवेज से मोस्ट ऑल्सो, आई कैन से मैनी ऑल्सो. मीन्स दिस रीजन, यहाँ पे मोस्ट और मैनी दोनों चल सकता है. लेकिन अगर 49 एनिमल्स हैं तो मैं मैनी तो फिर भी बोल सकता हूँ कि मैनी एनिमल्स आर एक्टिव. भाई सपोज मेरे पास 100 में से 49 लोग आते हैं सपोज कुछ पूछने के लिए, तो मैं बोलता हूँ कि many people come to me to ask something, but I cannot say most of the people come to me to ask something. अगर 49 लोग आते हैं तो, अगर 51 आते हैं 100 में से, तो मैं many people come to me to ask something भी बोल सकता हूँ, और और मैं most people भी बोल सकता हूँ, क्योंकि 51 मतलब 50% से ज्यादा. So more than 50% could be called as most. So what I'm trying to say is this, एक रीजन ऐसा है जहां पे मैनी और मोस्ट दोनों चल जा रहे हैं 51 to 100, और एक रीजन ऐसा है जहां सिर्फ मैनी चल पा रहा है.
यानी कभी हाँ कभी ना। ना मैं यस बोल सकता हूँ कि मैनी एंड मोस्ट आर सेम, ना मैं नो बोल सकता हूँ। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? मुझे बोलना बोलना पड़ेगा नॉट गिवन। भैया इसकी जानकारी नहीं है मुझे, एविडेंस जो है वो अधूरा है कि मर्डर इसी ने किया था या किसी और ने किया था पता नहीं। इसके हाथ में भी खून लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। So I cannot pinpoint and say whether this person is right or that person is right because the evidence is all spread across. I don't have a conclusive evidence. So I'll have to say what? I'll say not given here. आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ हर क्वेश्चन को कैपिटल्स में लिख रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर आंसर को इसी तरह से लिखें। सर्केडियन रिदम्स आइडेंटिफाई हाउ वी डू डिफरेंट थिंग्स ऑन डिफरेंट डेज। अब ये कोई टेक्निक है या कोई चीज है जिसको बोला जा रहा है सर्केडियन रिदम्स आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है इट टेल्स अस, ये हमें बताता है। किसी चीज को आइडेंटिफाई करना मतलब किसी चीज को पिन पॉइंट करना, समझना, जानना, पहचानना। सो सर्केडियन रिदम्स आइडेंटिफाई, ये टर्म ये आइडेंटिफाई करता है हाउ वी डू डिफरेंट थिंग्स ऑन डिफरेंट डेज। अलग अलग दिनों में हम अलग अलग काम कैसे करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अलग अलग दिन हो गए, तो मंडे को हम अलग काम कैसे करते हैं ट्यूसडे के कंपैरिजन में, या संडे को अलग काम कैसे करते हैं, ये सर्केडियन रिदम बताता है। तो आजकल सर्केडियन रिदम की बहुत बातें चल रही हैं। हम जानते हैं सर्केडियन रिदम मतलब आपकी बॉडी का साइकिल सुबह से लेकर शाम तक क्या चेंजेस होते हैं। सो इट इज नॉट अबाउट डिफरेंट डेज, इट्स अबाउट समथिंग विच इज इन द सेम डे। तो फैक्चुअली ये रॉन्ग है अगर आप अपने जीके की बात करें तो, लेकिन हमें तो भैया हर चीज का एविडेंस देखना है। तो हम जाके देखते हैं सर्केडियन रिदम कहाँ आया है। देखिए ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको अगले पैराग्राफ में मिलेगा। तो सर्केडियन रिदम नाम का वर्ड ढूंढ रहा हूं मैं, ये रहा। तो जरा देखते हैं क्या बोल रहा है। Chronobiologists are interested in circadian rhythm when they talk about humans. This is a complete cycle our bodies are naturally geared to undergo within the passage of a 24-hour day. सुबह से लेकर शाम तक हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, 24 आवर डे में जो चेंजेस होते हैं, नेचुरली हम उसको डिसाइड नहीं करते। बीपी बढ़ गया, हम जब सो के उठते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। जैसे हम जाग जाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये चेंजेस जो हमारी बॉडी में नेचुरली होते हैं, इसको सर्केडियन रिदम बोला गया है ना। कंप्लीट साइकिल आवर बॉडीज आर नेचुरली गियर्ड टू अंडरगो विद इन द पैसेज ऑफ अ 24 आवर्स डे। सो इट इज नॉट समथिंग विच यू डिसाइड कि भैया मेरा हार्ट बीट बढ़ जाना चाहिए, या मेरा टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, वट एवर। दीज थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। सो वो तो था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो इट्स अ पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, समथिंग विच इज नॉट बेस्ड ऑन योर कंट्रोल। सो चलिए कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए उसको, मोटा मोटा ये है कि इट इज सम नॉट समथिंग विच यू डू ऑन डिफरेंट डेज विद इन द सेम डे। व्हाट चेंजेस हैपन इन योर बॉडी आर व्हाट इज व्हाट कंस्टिट्यूट्स सर्केडियन रिदम। सो सर्केडियन रिदम यहाँ जो बोल रहा है कि हाउ वी डू डिफरेंट थिंग्स ऑन डिफरेंट डेज इज एब्सोल्युटली फॉल्स। भैया ये तो गलत है, क्योंकि तो एक ही दिन में जो चेंजेस होते हैं उसको बोला गया है। नाइट पर्सन कैन स्टिल हैव अ हेल्दी सर्केडियन रिदम। अब पहले तो हम समझेंगे कि नाइट पर्सन क्या होता है। नाइट पर्सन को इसने इन्वर्टेड कॉमा में डाला है। तो नाइट पर्सन मतलब रात का इंसान। रात का इंसान मतलब जो कि रात में ज्यादा एक्टिव होता है, जिसको रात ज्यादा पसंद होती है सुबह के कंपैरिजन में। मेरे जैसा नहीं जो सुबह 4 बजे उठ जाता है, वो जो कि 4 बजे तक सोता रहता, मतलब 4 बजे तक जागता है और अपना काम करता है। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्केडियन रिदम्स। For example, I naturally get up at 3 o'clock or 4 o'clock, and my family members naturally sleep at 3 o'clock or 4 o'clock. So our circadian rhythms are different. It's a blessing for me that I am not get disturbed in the early morning. But then fine. Now you understand what night person is. Night person is somebody who likes nights, right? Can still have a healthy circadian rhythm. तो अगर किसी को रात में काम करना पसंद है भाई, उसकी बॉडी ऐसी है, उसको भगवान ने ऐसा बनाया है, तो क्या वो नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है? तो भाई भगवान ने ऐसा बनाया है तो मैं कौन होता हूँ उसको नॉर्मल बोलने वाला।
जनरल नॉलेज की बात करें तो लगता है ठीक है ये आंसर, 9% कैन स्टिल हैव अ हेल्दी सर्केडियन रिदम। उसकी बॉडी का जो साइकिल है, जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ी ना कोई अच्छा या खराब होगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द पैसेज। ये पैसेज बोलता है जी, अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग एट नाइट एंड ऑल दिस, मैं नाइट पर्सन, ये देखिए यहाँ पर भी इसने नाइट पर्सन का रेफरेंस दे रखा है, तो मैं इसी लाइन को ध्यान से देखूंगा। ऑफन डिस्क्राइब हाउ दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू ऑपरेट ड्यूरिंग द मॉर्निंग। हाँ भैया, नाइट पर्सन ऐसे ही होते हैं। अलर्ट एंड फोकस्ड बाय द इवनिंग, आपके भी घर में होंगे कई, है ना, जो रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं। This is a benign variation within circadian rhythms known as chronotype. Benign variation का मतलब होता है this is a normal variation। जो मेडिसिन की फील्ड में काम करते हैं वो जानते हैं benign और malignant। Malignant is something which is harmful, benign is something which is harmless, which is normal, which is day to day। मच्छर काट जाता है आपकी स्किन के ऊपर, एक छोटा सा बल्ब पंप हो जाता है, so this is benign, वो तो अपने आप ठीक भी हो जाता है। बट अगर कोई मैलिग्नेंसी है तो उसको कैंसर बोलते हैं, उसका टेस्ट वेस्ट हो रहा होता है। सो दिस इज अ बिनाइन वेरिएशन विद इन सर्केडियन रिदम्स नोन एज क्रोनोटाइप। तो ये जो रात में जगने की कुछ लोगों की आदत है, ये बिनाइन वेरिएशन है। वेरिएशन इज जस्ट अ डिफरेंस, लाइक फॉर एग्जांपल आधे गोरे होते हैं, आधे काले होते हैं, कोई लंबा कोई, ठीक है ना। सो दीज आर वेरिएशंस, दिस इज नॉट अ डिफॉर्मिटी और एनी काइंड ऑफ disease. So this is a benign variation, which means a night person can still be healthy or he can have a healthy circadian rhythm. The answer is obviously true. New therapies can permanently change, अब ध्यान देने वाली बात है, permanently change। और न्यू थेरेपीज का मतलब होगा नए इलाज। कैन परमानेंटली चेंज circadian rhythm without causing harm। मतलब चेंज, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज सर्केडियन रिदम, किसी आदमी का सर्केडियन रिदम चेंज करना मतलब रात का जो जगने वाला है उसको आप दे सुबह वाला बना दो, या सुबह जगने वाला है उसको रात का बना दो। दैट इज व्हाट इज द परमानेंट चेंज इन सर्केडियन रिदम वुड मीन, इजंट इट? लाइक मुझे बोला जाए कि भाई साहब आपको कल से रात को ना 2 बजे तक जगना है और काम करना है, सुबह आप 10 बजे तक उठ लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी बॉडी थोड़े दिन जो है बड़ी परेशान होगी और शायद मेरी हेल्थ भी सफर करे। सो न्यू थेरेपीज कैन परमानेंटली चेंज सर्केडियन रिदम्स विदाउट कॉजिंग हार्म। लगता है गलत है। हार्म तो होगा भैया, अगर किसी को तुम चेंज करोगे, कॉफी वॉफी पिला के चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम तो होगी। लेट्स गो टू फॉर द एविडेंस अगेन। और देखिए ये, अब ये चीज ध्यान देखिए दीजिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो उसी सीक्वेंस में फ्लो हो रहे हैं जिस सीक्वेंस में पैराग्राफ चलता है। साइंटिस्ट हैव लिमिटेड एबिलिटीज, तो बोल रहा है भैया लिमिटेड एबिलिटीज टू क्रिएट ड्यूरेबल मॉडिफिकेशंस, वही चेंजेस की बात हो रही है, ऑफ chronobiological demands. Recent therapeutic developments for humans such as artificial light machines and melatonin administration can reset our circadian rhythms, for example, but our bodies can tell the difference and health suffers। भैया हेल्थ सफर करेगी। अगर तुम नाइट के बंदे हो तो जल्दी सो जाओ, अगर मतलब मॉर्निंग के पर्सन हो तो जल्दी सो जाओ, और अगर नाइट के पर्सन हो तो जगते रहो, काम करो, सुबह उठने की कोशिश मत करो बहुत जल्दी। तो ये जो है ना फार्स है, ये बोलते हैं सुबह 5 बजे उठना ही चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है और आपकी बॉडी उस रिदम से बनी हुई है तो 5 बजे उठना बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत ही ऐसा कोई फोर्स करे कि भैया करना ही पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट। For example, but our bodies can tell the difference, and health suffers when we breach these natural rhythms for extended periods of time. All right. So basically, if we try to change a person's natural cycle, it is harmful for him. तो यहाँ पे वो बोलता है new therapies can permanently change circadian rhythms without causing harm. This is definitely false. तो क्योंकि harm तो होगा ही होगा। Naturally produced vegetables have more nutritional value. Naturally produced vegetables, कौन से vegetables? जो naturally produce किए जाते हैं, मतलब जो डाल पे पके हुए होते हैं ना, फल होते हैं जिनको आप कोई केमिकल से नहीं पकाते, have more nutritional value। देख के लगता है कि हाँ भाई ठीक ही होगा, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब हमारे को जो एनर्जी देंगे वो ज़्यादा होगी, फूड वैल्यू। सो प्लांट्स अपीयर, देखिए अब देखो एकदम साथ साथ दे रखा है, नो मोर मेल्यूबल in this
respect. Studies demonstrate that vegetables grown in season and ripened on the tree, वो डाल के पके हुए फल जिनको बोला जा रहा है, are far higher in essential nutrients, which means they have got more nutritional value than those grown in greenhouses and ripened by laser. तो अगर आपने उनको नकली तरीके से पका रखा है तो उनकी जो वैल्यू है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू है कम है. सो नेचुरल प्रोड्यूस वैल्यू हैव मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू. दिस इज डेफिनेटली ट्रू. Okay. What does researchers identify as the ideal time to wake up in the morning? So when should you wake up? So basically, ideal time to wake up is being discussed here. Out of these four, let's see. तो अगर आप वहां जाके देखेंगे तो सुबह उठने का टाइम कौन सा बोला गया है, जरा हम ध्यान से देखते हैं. नेचुरली वेकअप देखिए यहीं पे होना चाहिए कहीं. नॉलेज ऑफ क्रोनोलॉजिकल हैव एनी प्रैग्मेटिक एप्लीकेशंस डे टू डे लाइव्स. Contemporary living sometimes appear to subject of biology. यहाँ पे कुछ 7 7:30 लिखा हुआ है, मैं इस पे जाता हूँ पहले. एवरेज अर्बन रेसिडेंट फॉर एग्जाम्पल राउजेज एट इतने बजे उठता है एवरेज बंदा, विच रिसर्चर्स बिलीव टू बी फार टू अर्ली. भैया 6 बजे भी उठना जरूरी नहीं है. वन स्टडी फाउंड दैट इवन राइजिंग एट 7 बजे हैज डिलीटीरियस इफेक्ट्स ऑन हेल्थ. देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है. When you read it, don't try to read it in English. Just translate it in your own language. I mean, it's not it's definitely a little cumbersome if you try to translate every word, but then keep on paraphrasing so that you get to understand it. You can read in chunks. और जितना आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उसको एक बार तरह से कंपाइल करते जाइए कि मेरे दिमाग में क्या स्टोरी बन रही है. सो अर्बन रेसिडेंट फॉर एग्जाम्पल राउजेज एट द डाडाडा 6 4. भाई देखिए ऐसे कोई वर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा आई ब्लेयरिंग, इट्स अ लिटिल टंग ट्विस्टर, आप उनको खा सकते हैं. डोंट ट्राई टू रीड एवरी वर्ड, just try to get the basic idea, understand the context, not the content, because if you understand the context you will understand the content. Average urban resident for example rouses उठता है 6 बजे, which researchers believe to be far too early, बहुत जल्दी है. वन स्टडी फाउंड दैट इवन राइजिंग एट 7 बजे हैज डिलीटीरियस इफेक्ट्स ऑन हेल्थ. अब डिलीटीरियस वर्ड का हो सकता है मतलब ना पता हो, लेकिन डिलीट का मतलब तो पता है. डिलीट मतलब किसी चीज को खराब कर देना, हटा देना, मिटा देना. तो हेल्थ को मिटाने वाली चीज है ये. मतलब डिलीटीरियस मीन्स हार्मफुल, मतलब 7 बजे उठना भी अच्छा नहीं है. अनलेस एक्सरसाइज इज परफॉर्म फॉर 30 मिनट्स. तो भैया 30 घंटा 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करो 7 बजे उठ के तो ठीक है. Optimum time has been whittled down to 7:22. Now see again this. Whittled down to is a phrase which I had never heard earlier. ये यहीं पे आया है. लेकिन optimum moment का मतलब मैं समझता हूँ. Optimum moment मतलब best time has been zeroed down to या whittled down to 7:22 a.m. जो words आपको कठिन लगे उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए. Understand the context. मतलब कि सुबह बच्चों को उठने के लिए 7:22 की सलाह दी गई है. If I go to the question and try to see, identify the ideal time. So भैया 7:22. Next question. In order to lose weight, weight lose करने के लिए क्या करना चाहिए? Avoid eating breakfast. Breakfast मत खाओ. Eat low carbohydrate breakfast. Carbohydrate कम लो. Exercise before breakfast. Breakfast के पहले exercise करो. एक्सरसाइज आफ्टर ब्रेकफास्ट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग. जनरली ऐसा हो जाता है कि पहले एक्सरसाइज कर लो फिर नाश्ता करो, वरना खा के करोगे तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन हम यहाँ जाके एविडेंस, तो ये भी बहुत जरूरी है. सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विद. अच्छा एक चीज़ जो मैं गलत कर रहा हूँ एक्चुअली वो ये है कि मैं पहले ही ऑप्शंस को पढ़ रहा हूँ. ऑप्शंस को पहले नहीं पढ़ना चाहिए, हमें सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए पहले और जाकर उससे रिलेटेड चीज़ पहले जान लेनी चाहिए. वरना अगर ऑप्शन पहले पढ़ते हैं आप तो यू गेट योर थिंकिंग गेट्स कलर्ड विद दोज ऑप्शंस. So in order to lose weight, we should. So let's go to the passage and see where are they talking about lose weight and what are they talking about. Extra pounds, shed extra pounds की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब lose weight की बात हो रही है. Never skip breakfast. Breakfast को मत छोड़ो. This distorts your circadian rhythm and puts your body in starvation mode. तो भैया ये मत करो. Recommended course of action क्या है, क्या करना चाहिए? Follow an intense workout. पहले वर्कआउट कर लो with a carbohydrate rich breakfast. First do intense workout
then follow it with a carbohydrate rich breakfast. अदर वे राउंड एंड वेट लॉस रिजल्ट्स आर नॉट प्रोनाउंस्ड. अगर तुमने पहले नाश्ता कर लिया फिर एक्सरसाइज करी तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. सो फर्स्ट डू द इंटेंस ब्रेकफास्ट, इंटेंस वर्कआउट, देन डू द ब्रेकफास्ट इज व्हाट दे आर सजेस्टिंग. सो अवॉइड, कहाँ गया ये वाला था, अवॉइड ड्रिंकिंग ईटिंग ब्रेकफास्ट, ऐसा तो नहीं बोला. ईट अ लो कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट, नो. एक्सरसाइज बिफोर ब्रेकफास्ट, यस. एक्सरसाइज आफ्टर ब्रेकफास्ट, नहीं. कि पहले एक्सरसाइज करो और फिर ब्रेकफास्ट लो. ओके, विच इज नॉट मेंशन्ड, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. नॉट मेंशन्ड एज अ वे टू इम्प्रूव सप्लीमेंट एब्जॉर्प्शन. सप्लीमेंट एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा तरीका नहीं बोला गया है. तो अब जरा पहले तो ये टेक्निकल चीजें थोड़ा सप्लीमेंट एब्जॉर्प्शन समझ लें. So this is your body. Whatever you eat is basically a supplement. And supplement absorption would be कि बॉडी आपके सप्लीमेंट को एब्जॉर्ब कर ले एंड उसका जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले, बॉडी अपना पार्ट बना ले. आपने संतरा खाया, आपका पार्ट बन गया, या वट एवर फ्रूट यू ईट. सो बेसिकली एब्जॉर्प्शन इज लाइक डाइजेशन. सो सप्लीमेंट एब्जॉर्प्शन बाय बॉडी इज इट्स सेइंग व्हाट इज नॉट मेंशन्ड एज अ वे टू इंप्रूव सप्लीमेंट एब्जॉर्प्शन. अब मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा, मैं वहां जा करके पहले थोड़ा सा पैसेज देख रहा हूँ जहाँ सप्लीमेंट एब्जॉर्प्शन की बात की गई है, एंड देन आई यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. ग्रेट फॉर ब्रेकिंग विटामिन, सप्लीमेंट एब्जॉर्प्शन वर्ड यहाँ पे आ गया. बाय द बॉडी इज नॉट टेम्पोरल डिपेंडेंट, इज नॉट टाइम डिपेंडेंट. मतलब ये जो है ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है. हम वही नॉट वाला चीज देख रहे थे. So temporal means time. Supplement absorption by body is not temporal dependent. मतलब आप कभी भी कोई supplement लो, उसका absorption उतना ही रहेगा. It will not depend on the time of the day. So avoid drinking caffeine. ये नहीं. Taking supplement foods that can dissolve them. A supplement storing cool place. Taking supplement at the breakfast. Breakfast एक particular time की बात हो गई. So supplement absorption by the body is not temporal dependent. It is not time dependent. So it is not necessary that you should take it at the time of breakfast only. Whenever you take a supplement, the rate of absorption would remain the same. लेकिन इसमें इन्होंने घुमाने के लिए एक आगे बात बोल रखी है. They say that but naturopath, ये कोई naturopath पैदा हुए जिनका नाम सैम चाचा है, स्टोन चाचा है. स्टोन चाचा बोलते हैं that the extra boost at breakfast helps us get energized for the day. देखिए क्या बोल रहा है, notes that extra boost can get us energized for the day. मतलब अगर आपने सुबह सुबह अपने कुछ नाश्ता वास्ता कर लिया तो दिन भर के लिए एनर्जी बनी रहेगी. लेकिन क्या इससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा ऐसा नहीं बोल रही है. तो क्वेश्चन इज नॉट अबाउट एनर्जी, क्वेश्चन इज अबाउट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, सप्लीमेंट एब्जॉर्प्शन बाय बॉडी इज नॉट टेम्पोरल डिपेंडेंट, मीन्स इट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट, मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक ऑल द सप्लीमेंट्स at the time of breakfast for higher absorption. For energy, it's a different context. Absorption, it's a different context. The question is about absorption. So it is not necessary to take the supplements at the time of breakfast for absorption. Okay. Now let's go to the next question. The next question talks about the best time to stop drinking coffee is. कॉफी पीना कब बंद कर देना चाहिए? स्टॉप ड्रिंकिंग कॉफी. तो देखें जरा, वेयर इज द आंसर टू दिस वन? द बेस्ट टाइम टू स्टॉप ड्रिंकिंग कॉफी. ये देखिए यहाँ पे एस्प्रेसो की बात कर रहा है. एस्प्रेसो मतलब कॉफी. वी हैव द इटालियंस टू थैंक फॉर दैट, बट टू प्रिपेयर फॉर अ गुड नाइट स्लीप वी आर बेटर ऑफ पुटिंग ब्रेक्स ऑन कैफीन कंजम्पशन एज अर्ली एज 3 PM. टाइम की बात कर रहा था. जैसे ही टाइम से रिलेटेड कोई क्लॉज आया मैंने उसको सर्कल कर दिया. सो द व्हाट ही सेइंग इज वी शुड स्टॉप ड्रिंकिंग कॉफी एज अर्ली एज 3 PM. शाम को 3 बजे के बाद कॉफी मत पियो. तो भैया कब हो गया 3 बजे? 3 o'clock मीन्स मिड आफ्टरनून, नॉट 10 PM, नॉट ओनली व्हेन फीलिंग एंग्शियस, नॉट आफ्टर डिनर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इवनिंग वी शुड, शाम को हमें क्या करना चाहिए? तो देखें जरा इवनिंग की क्या बात बोल रहा है, पहले हम समझ लें. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है.
मैं ऑप्शंस को ध्यान से जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पहले वहां जा रहा हूँ जहाँ पे इवनिंग की बात बोली गई हो। अभी देखिए इवनिंग वाला पैराग्राफ ये रहा। इम्पॉर्टेंट फॉर वाइंडिंग डाउन मतलब बॉडी को स्लो कर दिया, खत्म करने के लिए किसी चीज को हम जब बंद करते हैं, अपने एक्टिविटीज को स्लो डाउन करते हैं। दिस डाइटिशियन वॉर्न्स, क्या वॉर्न कर रहा है कि आफ्टर 5 कार्बोहाइड्रेट फास्ट इज मोर ऑफ अ कल्चरल मिथ। ये जो आप कार्बोहाइड्रेट खाना शाम को छोड़ देते हैं, ये कल्चरल मिथ है, ये एक सच्चाई नहीं है, ये एक मिथ है। मिथ मीन्स समथिंग विच इज नॉट बेस्ड ऑन सम एविडेंस। हिंदी में सो मिथ इज समथिंग विच इज गलत जानकारी बोल लेते हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग। सो इट्स अ मिथ, इट्स नॉट अ रियलिटी। ये सच्चाई नहीं है, ये तो एक आभास है, सच्चाई नहीं है। सो इट्स अ कल्चरल मिथ। लोग बाग ऐसा सोचते हैं, ये सोच है लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये एक, इट कुड बी एन ओपिनियन, एक विचार है। सो इट्स अ कल्चरल मिथ। देन अ बायोलॉजिकल क्रोनोबायोलॉजिकल डिमांड, मतलब जरूरी नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट लेना रात को बंद कर दें। तो ये बोल रहा है क्या नहीं करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट छोड़ना नहीं चाहिए। दिस विल डिप्राइव योर बॉडी ऑफ वाइटल एनर्जी नीड्स, ओवरलोडिंग योर गट। अब वो देखिए इसने यहाँ पे थोड़ा सा टोन चेंज किया, क्या नहीं करना चाहिए वो बताया, अब बोल रहा है क्या कर, मतलब क्या चीज अवॉइड करो। ओवरलोडिंग योर गट कुड लीड टू इनडाइजेशन, ज्यादा मत खाओ लेकिन। दो, ये देखिए दो का यही महत्व है क्योंकि यहाँ पर ये इसने यू टर्न मारा है। ये जो साइन पोस्ट वर्ड्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर इसने देखिए दो लगाया है, कह रहा है कि लेकिन बहुत ज्यादा भी मत खाओ। Our digestive tracts do not shut down for the night entirely, but their work slows down. शाम को वो धीरा चल रहा होता है, रात को आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसलिए उसको कम काम करने को दो। So you should consuming a modest snack should be entirely sufficient. तो रात में आपको modest snack, हल्का सा कुछ भी खा लो, that is enough. तो क्या बोल रहा है भैया, नेचुरली प्रोड्यूस नहीं, कौन सा क्वेश्चन था ये। सो बेसिकली यहाँ था ये, इन द इवनिंग वी शुड eat a light meal, modest snack. So we have a clear evidence for this. Last question says, which of the following phrases best describes the main aim of reading passage? अब इसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसको हमें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू ही करना पड़ेगा। ये पूरे पैसेज की बात कर रहा है, डिस्क्राइब्स द मेन एम ऑफ रीडिंग पैसेज। सो दिस इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोलता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन एम, मुख्य इसका उद्देश्य क्या है। देखें, टू सजेस्ट हेल्थियर वेज ऑफ ईटिंग स्लीपिंग एंड एक्सरसाइजिंग। हेल्थियर वेज ऑफ ईटिंग स्लीपिंग एक्सरसाइज, ये बोला तो है इसने कि कब कॉफी पीनी चाहिए, कब एक्सरसाइज करना चाहिए एंड ऑल दैट। लेकिन अगर मैं शुरू से देखूं, फर्स्ट पैर ये पैसेज की बात कर रहा है, तो पूरे पैसेज में क्या बात बोली गई है मुझे इस पर ध्यान देना पड़ेगा, एक पैराग्राफ का काम नहीं चलेगा। इसने शुरू में क्रोनोबायोलॉजी को डिफाइन किया, फिर उसने कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की बात करी कि एनिमल्स कब एक्टिव होते हैं कब इनएक्टिव होते हैं, फिर वो प्लांट्स पे आया, फिर वो ह्यूमन बीइंग्स पे आया कि कब कॉफ़ी पीनी चाहिए, सर्केडियन रिदम वगैरह। सो बेसिकली डिफाइन करने के बाद एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन सबकी बात कर रहा है। तो अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि हमें कब एक्सरसाइज करना चाहिए और हमें कब अपने सोना चाहिए, जगना चाहिए, तो ये बड़ा लिमिटेड हो जाएगा इसका स्कोप। To suggest healthier ways of eating, sleeping, and exercising. So this is very limited in scope. I am eliminating it. To describe how the modern life has made chronobiology largely irrelevant. कि chronobiology को भूल जाओ, जब सोना हो तब सो, जब उठना हो तब उठो, जो खाना हो वो खाओ, it's wrong. To introduce, sorry, to introduce chronobiology and describe some practical applications. Introduce इसने जरूर किया chronobiology को शुरू में, जैसा हम बोल रहे थे, and describe some practical application. This is more generic in nature और ये सब कुछ कवर कर रहा है कि कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, whether we should change our circadian rhythm or not. So it has definitely introduced chronobiology and it has talked about its practical applications to plan a day schedule that can alter our natural biological chronobiological rhythms.
कि ऐसा दिन बनाओ जिससे आपकी क्रोनोबायोलॉजी बदल जाए. So he is not suggesting that. That is incorrect. So that is the answer to all the questions of the reading passage. And we can further discuss once you have gone through it. In case you want any further discussion on these questions, we can definitely discuss them. अब मैं आ रहा हूँ राइटिंग वाले पैसेज पर जो आपने किया था. The topic given to you was this: many countries prefer showing the historical artwork of other countries in their museums and art galleries. Some people say that countries should focus on showing their own culture and history and culture. To what extent do you agree or disagree? So this was the writing passage. कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमें दूसरी कंट्री के जो आर्टिफैक्ट्स हैं या आर्ट वर्क है वो नहीं दिखाना चाहिए, सिर्फ अपनी कंट्री का ही कंटेंट दिखाना चाहिए म्यूजियम में. Some say that countries should focus on, some say that countries should focus on their own, है ना. This is what they are saying. So their own history and culture. क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात है कि वो बोल रहा है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री. सो व्हेन इट इज अ टू व्हाट एक्सटेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू हैव द फ्रीडम टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम. टू व्हाट एक्सटेंट मतलब किस हद तक. आप पार्शियली एग्री भी कर सकते हैं, आप फुल्ली एग्री भी कर सकते हैं, राइट. So let us see how this, so this is very important, how to analyze the question. To what extent do you agree or disagree? It's not do you, it is not framed as do you agree or disagree. It's talking about to what extent, आप किस हद तक इस बात से राजी होते हैं. So you can take both the sides. So let's see how it is drafted. The purpose of, देखिए जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखें अधिक से अधिक 3 लाइनें लिखें, उसके अंदर 3 sentences से ज़्यादा ना लिखें. Try to make it very precise and simple. Start with a generic statement. The purpose of museums and art galleries is to educate masses about history and culture. तो भैया ये एक पर्पज है कि एजुकेट करना होता है. फिर इसने बोला at the same time museums and art galleries are commercial establishments which run to generate profits. तो गोल क्या है उसका कि एजुकेट भी करना है और प्रॉफिट भी निकालना है. Isn't it? वो वैसे it's not a mercenary organization. So you have to generate profits as well. है ना, generate profits. So in the first 2 lines, the introduction talks about museums or art galleries का purpose क्या है. From this perspective, they should display all such artifacts which attract, entertain and educate visitors. तो भैया वो सब दिखाओ जिससे कि विजिटर्स आए, अट्रैक्ट हो. तो इसने अपना बड़ा क्लियर कट पर्सपेक्टिव बता रहा है यहाँ पे कि आप सिर्फ वही नहीं दिखा सकते जो आपकी कंट्री का है, आपको वो सब दिखाना चाहिए विच अट्रैक्ट्स, एडुकेट्स एंड enlightens the masses, which attracts, entertains, which all such artifacts which attract, entertain and educate the masses. Okay, सब कुछ दिखाओ भाई. ये हाईलाइट नहीं कर पा रहा मैं, बताओ आप. So basically I can go here and choose this color. Okay. So this is the introduction. Whenever you write an introduction, do not go too detailed. I mean, do not write long details about it. Just be very precise. It should be like a curtain raiser. जैसे आप सिर्फ एक बेसिक बात बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से अपना एक curtain raiser बताइए और उसके बाद उसको आप आगे ले जाइए. Then there are some fixed phrases which you can read in the use in the essay to begin with. जैसे शुरुआत करने के लिए बोल रहे हैं. Let us enlist the advantages of showing native history and art objects. तो native history के क्या फायदे हैं बता रहा है. The biggest advantage would be that native residents are more curious to know about their own. देखिए यहाँ पे हमने जो एजेंडा सेट किया है उसमें बोल रहे हैं सब कुछ दिखाओ. तो सब कुछ दिखाओ में इसके पास स्कोप है कि वो दोनों चीज को बारे में बात कर सकता है कि लोकल हिस्ट्री का क्या फायदा है और बाहर की चीजें दिखाने का क्या फायदा है. तो 2 पैराग्राफ उस पर बना दिए गए. सो इट्स अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे. द बिगेस्ट एडवांटेज वुड बी, तो नेटिव चीजें दिखाने का क्या फायदा है. नेटिव रेसिडेंट्स आर मोर क्यूरियस टू नो अबाउट देयर ओन पास्ट. फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल विजिट सालार जंग म्यूजियम इन हैदराबाद टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साउदर्न रूलर्स. द सेकेंड एडवांटेज इज दैट, पहला एडवांटेज बता दिया, फिर क्विकली सेकेंड एडवांटेज. देखिए इसमें एक और स्ट्रक्चर देखिए आप. एक थीम सेंटेंस है और उसके बाद एग्जाम्पल है. बस दो सेंटेंस बोला गया है हर पॉइंट पर, क्या बात है और उसका क्या उदाहरण है. The second advantage is that such knowledge connects the natives with their roots.
So it instills the feeling of pride in them when they get to learn about their rich past and culture. फिर उसके बाद फिर से example. For example, when we see the hard work of old artists in art galleries, old artists of native artists बोल सकते हैं, it mesmerizes us and makes us appreciate the skills of old artists. Old artist matlab not new artist. Old artist is not about the age. Old artist is about the era. Now let us delve into matlab discuss. अब ये दूसरे पैराग्राफ पे आया है where he is talking about the advantage of showing foreign culture. The advantage of showing artwork and history of other countries. Foreign artwork and artifacts are especially attractive to people who are not able to visit the foreign land. तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप यहीं पे वो चीज़ देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वेंट टू आगरा, यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए बिकॉज दिस इज क्लॉज. I was intrigued to see the artwork of British artists shown in one of the museums there. I could have never got an opportunity to know about them, comma, if their work was not shown there. Okay. Another advantage, तो दूसरा पहला एडवांटेज बता दिया, फिर हर एक के बारे में दो दो पॉइंट है, इसके भी दो पॉइंट, इसके भी दो पॉइंट. Another advantage of showing foreign artwork is to draw similarities and differences with the native history. कि हम पता लगा सकते हैं वो हमसे किस तरह से अलग थे. This is a great way to educate people about the best practices followed by non-native people. कि बाहर की कंट्री के लोग कौन सी अच्छे चीज़ें या किस तरह से वो एडवांस चीज़ें यूज़ करते थे, उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं या हम जान सकते हैं कि हम कैसे उसी काम को अच्छे से करते थे. सो फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव हिस्ट्री, दिस कुड बी ऑफ ग्रेट यूज. और कंक्लूजन हमेशा छुटकू सा रखिए, एकदम पंची कंक्लूजन लिखिए, उसमें बहुत सारी डिटेल्स मत डालिए. टू कंक्लूड, given that मतलब because of or as we know, given that there are great benefits of showing native as well as non-native artwork and history, I suggest that museums and art galleries should not be biased. Should not be biased. Biased means should not be partial towards displaying local history and culture only. तो जो इंट्रोडक्शन में था वही यहाँ पे बोला उसने कि आप सब कुछ दिखाइए वहाँ पे, because the purpose उसने पहले ही बोल दिया है, for the purpose of generating profits and everything else. So this is a very very well rounded and well structured essay. It is very important to understand the question correctly, as it says to what extent do you agree or disagree. You have the scope of speaking about both the sides, and this is how you should draft the essay. Hope this was useful. In case you have any questions, you are most welcome to reach me. I'm putting in my numbers and details there. And thank you for taking this diagnostic test. This is the first step towards your journey. And I hope this was useful. In case you have any questions, you are most welcome to ask me. Thank you so much.